Now in the third part we are going to see sound as a longitudinal wave. Sound as a longitudinal wave. So what do you mean by wave? What do you mean by wave? Wave एक pattern है, right? और longitudinal, what does it mean? It means that running lengthwise from north to from east to west. हम length ले रहे हैं उसकी, ठीक है. When a body is struck, it vibrates and sets the adjacent particles in the surrounding air into vibrations. Now क्या होता है, whenever we are striking a body, it vibrates and set the adjacent particles in the surrounding air into vibration. तो वो खुद भी वाइब्रेट होती है और उसके आजू बाजू में जो पार्टिकल्स है वो भी क्या होते हैं, वो वाइब्रेशन से वो भी वाइब्रेट होते हैं. During vibrations, the particles also transfer some amount of energy. अब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी वाइब्रेट हो रहा है, उसकी वजह से एडजेसेंट पार्टिकल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है सराउंडिंग में वो भी क्या करते हैं, ड्यू टू वाइब्रेशन दे प्रोड्यूस सर्टन ऑफ द एनर्जी. यस, द वाइब्रेशंस ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड forming longitudinal wave. The vibrations travel in the direction of propagation of sounds. ये जो vibrations है वो क्या करते हैं, कौन से direction में move होते हैं, वो in the direction of propagation of sound forming a longitudinal wave. जहाँ जहाँ voice sound propagate हो रहा है वो इसमें वो क्या होता है, वो travel करता है. Thus a longitudinal wave can be defined as a wave in which particles vibrate in same direction as that of the sound. Longitudinal wave को हम कैसे define करेंगे? As a wave in which particles vibrate in the same direction as that of the sound. When sound wave moves, there is transfer of energy but no transfer of matter. Whenever the sound wave moves, there is transfer of energy but there is no transfer of matter. When we hear bell ring, the sound wave does not carry the particles of air around the bell to our ears. When we hear a bell ring, जैसे कोई bell ring होती है, the sound wave does not carry the particle of air from around the bell to our ears. It's only the disturbance that travels through the adjacent particles of the air to our ears. इसमें समझने वाली क्या बात है ये पैराग्राफ में, कि whenever the sound wave moves, okay, there is a transfer of energy. Only energy is transferring. कोई भी मैटर नहीं ट्रांसफर हो रहा है, कोई पार्टिकल्स नहीं ट्रांसफर हो रहा है, बस वो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ी देर के लिए, वो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है. इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव द एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड मूव बैक एंड फोर्थ. वो वाइब्रेट होते हैं और मूव होते हैं. द वाइब्रेशंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कॉजेज द एयर पार्टिकल्स टू गेट क्राउडेड टुगेदर, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर. दिस रीजन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन. नाउ क्या हो गया, इन लॉन्जिट्यूडिनल वेव द एयर पार्टिकल्स, जो एयर पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं. दे मूव बैक एंड फोर्थ. The vibrations in the forward directions causes air particles to get crowded together. Air particles क्या हो गए, एक जगह पे इकट्ठे आ गए, creating a region of high pressure. एक ऐसा high pressure का region वहाँ create हो गया. This region of sound wave is called as compression. Vibrations in the backward direction causes the air particles to spread out, occupying more space and creating a low pressure region called as rarefaction. Vibrations in the backward direction causes the air particles to spread out, occupying more space and creating a low pressure region called as rarefaction. One compression and one rarefaction together corresponds to one vibration. Now क्या क्या होता है, the region of the sound wave is called compression. तो ये जो रीजन है हाई प्रेशर का उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन. वाइब्रेशंस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन
causes the air particles to spread out, occupying more space and creating a low pressure region, is called as rarefaction. जब वो आगे गया, फॉरवर्ड था, तो दैट वाज कंप्रेशन, और जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया तो क्या हो गया, एयर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो गए, और क्या हो गया, वो जो स्पेस थी, मोर स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया और एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और उसे हम क्या कहेंगे, रेयरफैक्शन. नाउ सिंपल इक्वेशन है, वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन टुगेदर corresponds to one vibration. One vibration is equal to one compression plus one rarefaction. Rare is for backward and compression is for forward. Now terms related to sound waves. अब sound waves से related कुछ हम terms देखेंगे. Oscillation, wavelength, frequency, amplitude and time period are commonly used terms when we describe a wave. Oscillation, wavelength, frequency, amplitude, time period are commonly used terms when we describe a wave. अब एक एक समझते जाएंगे हम. कितने टर्म्स है वो, 1 2 3 4 5 टर्म्स है. ठीक है ना, कौन कौन से टर्म्स है देखते हैं. ऑसिलेशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स of a medium when one full wave is constituted is known as one oscillation. The to and fro, आगे पीछे, motion of one particle of medium when one full wave is constituted is known as one oscillation. A wave starting from A and reaching C denotes one oscillation. ये जो वेव है ना, देखो ये टू एंड फ्रो motion of particles of medium when one full wave is constituted is called as oscillation. I will show you. Now see the to and fro motion. Now ये पूरा ऐसे तक गई और वापस से C तक आ गई. Yes, full wave is constituted a wave reaching from starting from A and reaching from C denotes one oscillation. ठीक है. उसके बाद वेवलेंथ. अब हम क्या देखेंगे, वेवलेंथ, द लेंथ ऑफ अ वेव along with x axis, that is the distance between two successive crests or troughs, is known as its wavelength. It is represented by the letter lambda. ये ग्रीक लेटर है लैम्डा. तो वेवलेंथ हम कैसे गिनेंगे, नाउ सी हियर, सी दिस इज लैम्डा. नाउ वेवलेंथ कौन सी है, ए से लेके वन ऑसिलेशन की उसकी जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, यस, उसे हम कहेंगे वेवलेंथ. ऑसिलेशन किसको कहा हमने, पॉइंट ए से लेके वो जब सी तक पहुंची, ठीक है, वो जैसे वो पार्टिकल ने ट्रैवल किया पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक, तो वो एक ऑसिलेशन था. वेव की लेंथ को कैसे गिनोगे आप, हाँ, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स. यस, द लेंथ ऑफ अ वेव अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस. ये अपना एक्स एक्सिस है, ये पूरा अपना एक्स एक्सिस है. तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है ए से लेके सी तक जाने तक, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. समझ में आ गया. ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाने के लिए उसको जितना भी टाइम लगा, सो दैट इज कॉल्ड एज wavelength. That is called as wavelength. Okay, and it is represented by letter lambda. It is represented by the letter lambda. Now next point is frequency. The number of oscillations made by the wave in unit time is called as frequency. The number of oscillations made by a wave in unit time. एक यूनिट टाइम में उसने कितने ऑसिलेशंस बनाए, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी. नाउ द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स. उसने एक, देखो पहले हमने क्या देखा, ऑसिलेशन देखा, ठीक है, उसके बाद हमने देखा वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ देखी, फिर हमने देखा फ्रीक्वेंसी, कितने ऑसिलेशन वो करता है, एक वेव कितने ऑसिलेशन करती है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, वन यूनिट टाइम में वो कितने ऑसिलेशंस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं. नाउ
द एसआई यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्स, हर्ट्स, ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल अ ट्यूनिंग फोक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 384 हर्ट्स विच मीन्स इट मेक्स 384 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. वो कितने ऑसिलेशंस करती है एक सेकेंड में? पर सेकेंड 384, 384 टाइम्स वो वाइब्रेट होता है, राइट. नाउ टाइम पीरियड, फिफ्थ यूनिट कौन सा था? टाइम पीरियड. नाउ द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए वेव को जितना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स. टाइम पीरियड सेकेंड्स में होता है. इसीलिए देखो जैसे हर्ट्स का भी यूनिट था, इट वाज 384 ऑसिलेशंस पर सेकेंड. सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? 384 ऑसिलेशंस दिस पर सेकेंड. इट इज़ पर second oscillations. yes. now उसका फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. yes, it is measured in seconds. It is denoted by letter T and the relation between the frequency and the time period is given by frequency is equal to 1 upon time period. Thus frequency is inversely proportional to the time period of an oscillation. जो frequency है वो कैसी proportional है? It is inversely proportional. माना frequency बढ़ी, time period of oscillation कम होते जाएगा. For example, if the frequency of the wave is 1000 hertz, then its time period will be 1 upon 1000. Yes, वो inversely proportionate है. अगर फ्रीक्वेंसी वेव की कितनी है? 1000 हर्ट्स है, तो टाइम पीरियड कैसे रहेगा? 1 अपॉन 1000. सिंपल, ठीक है. नाउ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. जितना भी डिस्प्लेस हो रही है वो, हाँ, वेव जितना डिस्प्लेस हो रही है, फॉरवर्ड जाएंगी या बैकवर्ड जाएंगी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं. इट्स यूनिट इज मीटर. Also, two waves of same frequency can have different amplitudes. दो waves, हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी के, उसको डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं. ठीक है, अभी हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वी सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तो स्काई वोकैब कौन सा था? पहले कंप्रेशन माना, फॉरवर्ड. द वाइब्रेशन ऑफ एन air particle in forward direction, vibration of the air particles in forward direction causes them to get crowded together creating a region of high pressure. उसे हम compression कहते हैं. फिर एक आया था oscillation, the to and fro motion when one full wave is constituted, उसे oscillation कहते हैं. तो ये दोनों टर्म सबको 5 टाइम सबके क्लास वर्क कॉपी में लिखना है और ये फॉर्मूला भी लर्न करना है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड का. चलो एक बार प्रोग्रेस चेक करते हैं. द टू एंड फ्रो मोशन व्हेन वन फुल वेव इज कॉन्स्टिट्यूटेड इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. गुड. द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड.